نیشنل اسمبلی میں کل انہوں نے شرکت نہ کر کے اسی جمہوری ادارے کو نقصان پہنچایا جس کی کہ وہ ووٹ کو عزت دو کی ایک منافقانہ ایک ورد کرتے رہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ اخلاقیات پر مبنی سیاست کی، پیسے کے زور پر سیاست میں آنے والوں کے باعث ملک معاشی طور پر مفلوج ہوا، ملک کو دیوالیہ کرنے والوں کا پیچھا کریں گے، دھوس اور دھاندلی کی سیاست کرنے والوں کے نظریے کو شکست دیں گے۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کی میڈیا سے گفتگو۔ مودی دور حکومت میں حریت قیادت کے خلاف بغاوت کے مقدمات میں تیزی، 2014 سے 2020 کے درمیان مقدمات کے اندراج میں 28% اضافہ، قانونی ماہرین کا شدید تشویش کا اظہار، بھارت نے مقبوضہ آبادی میں جبر و استبداد کا منظم جال پھیلا رکھا ہے، حریت قیادت۔ کسانوں نے زرعی قوانین کے خلاف مودی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا، مظاہرین کی دوسرے بجٹ سیشن کے دوران بھارتی پارلیمنٹ کے گھیراؤ کی تیاریاں، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کی ہائی ویز بلاک، 50,000 خواتین کسان ویمن ڈے پر دلی پہنچ گئیں، ڈرایا اور خریدا نہیں جا سکتا کسان رہنما۔ ملک میں کورونا سے مزید 39 افراد جاں بحق، 1,780 افراد میں وائرس کی تصدیق، دنیا بھر میں وبا سے 26 لاکھ سے زائد ہلاکت۔ امریکی سینٹ میں $1.90 ارب کا کورونا امدادی پیکج منظور، امریکی عوام، چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں اور کاروباری افراد کو ریلیف کی فراہمی شامل، لوگوں کو رقوم کی ادائیگی اسی ماہ شروع کر دی جائے گی، صدر جو بائیڈن۔ لاہور میں جنا گولڈ کپ پولو ٹورنامنٹ، ڈائمنڈ پینٹس کی ٹیم نے ٹائٹل جیت لیا، صدر ڈاکٹر عارف الوی فائنل میچ میں مہمان خصوصی تھے، کامیاب ٹیم اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 6 کا التوا، بایو سیکیور ماحول میں کورونا کیسے پھیلا، تحقیقات کے لیے پینل کا اعلان، فیکٹ فائنڈنگ پینل 31 مارچ تک سفارشات اور تجاویز چیئرمین پی سی بی کو پیش کرے گا۔ اور یورپین فٹ بال لیگز کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جاری، انگلش پریمیئر لیگ میں لیسٹر سٹی نے برائٹن کو ہرا دیا، جرمن فٹ بال میں بائرن میونخ کی بوروسیا ڈارٹمنڈ کے خلاف کامیابی، رابرٹ لیوانڈوسکی کی ہیٹ ٹرک، اسپینش فٹ بال لا لیگا میں بارسلونا نے اوساسونا کو 2 گول سے شکست دی۔ En dat terwijl Frenkie een bom. Nou, Umtiti hebben maar 23 keer gescoord in totaal. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق، میں ہوں سمینہ رانا، اور کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، ان خبروں کی تفصیل جانیے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ جی بچوں، کر لیا ہوم ورک؟ جی۔ ذرا مجھے اسکول کی ڈائری تو دکھائیں۔ ہلکا بستہ ایکٹ، کیا اب روزانہ ساری کتابیں اسکول نہیں لے کے جانی؟ ٹیچر نے کہا ہے کہ اس ڈائری کے مطابق کتابیں لے کے آنی ہیں۔ واہ بھائی، یعنی اب ہر بستہ ہوگا ہلکا بستہ۔ ہلکا بستہ ایکٹ
2020 खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का पहला सूबा जहां है अब हर जमात के बस्ते का वजन मुकर्रर। हुकूमत का तालीम दोस्त इक़दाम। हल्का बस्ता कामयाबी का रास्ता। महकमा एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। मंजिल बदली, बदला रास्ता, बदला खैबर पख्तूनख्वा। सूबे की 100% आबादी के लिए 100% मुफ्त इलाज। सेहत सहूलत प्रोग्राम से अस्पतालों में दाखिले की शरह में 270% तक इजाफा। दूर दराज वादियों और आबादियों को खुशहाली के जारी सफर से जोड़ने के लिए सवात एक्सप्रेस वे पहले मरहले की तकमील के बाद चकदरा से फतेहपुर सवात तक 81 किलोमीटर तवील 4 लेन सवात एक्सप्रेस वे का आगाज। सूबे में जम होने वाले कबायली अजला को तरक्की के अमल में शामिल करने के लिए 10 साला तरक्याती मंसूबा। पहले मरहले में 142 अरब रुपए से 127 नए मंसूबों की 3 सालों में तेज तर तकमील और हर वो सहूलत जो सूबे के दीगर इलाकों में मौजूद है। महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। खबरनामे का आगाज करेंगे विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा अखलाकियात पर मबनी सियासत की। अददी एतबार से अवाम ने पहले से भी ज्यादा वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि धौंस और धांधली की सियासत करने वालों के नजरिए को शिकस्त देंगे। पैसे के जोर पर सियासत में आने वालों के बाइस मुल्क माशी तौर पर मफलूज हुआ। ये लोग कभी अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते। विफाकी वजीर ने कहा कि तहरीक इंसाफ सेनेट में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अखलाकियात की सियासत से वज़ीर आज़म की तौक़ीर और एहतराम में इजाफा हुआ है। नजरियाती सियासत के बाइस चारों सूबों में तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी है। हम हर तरह से तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मनफी सियासत करते रहेंगे और हम मुस्बत सियासत करते रहेंगे। सेनेट के इलेक्शंस में जिस तरह के हमारी मेजॉरिटी आ गई, नेशनल असेंबली में कल इन्होंने शिरकत ना करके उसी जमहूरी इदारे को नुकसान पहुंचाया जिसकी कि वो वोट को इज्जत दो की एक मुनाफिकाना एक विर्द करते रहते हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का एतमाद का वोट ताज़ा हवा का झोंका है। पाकिस्तान की बेहतरी का फैसला कुन दौर शुरू हो चुका है। अवाम को महंगाई के चुंगल से आज़ाद कराएंगे और माशी बेहतरी का फायदा गरीब अवाम को पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने महंगाई के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। हम गरीबों को सेहत के साथ साथ छत भी फराहम करेंगे। नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वज़ीर दिफा परवेज खटक ने वक्त के हमरा वली बाग में ANP के कायदीन अमीर हैदर होती, मियाँ इफ्तिखार हुसैन और अहमल वली खान से मुलाकात की। इस मौके पर नौमुंतखब सेनेटर हिदायतुल्लाह और उमर फारूक भी मौजूद थे। मुलाकात में ANP क़यादत ने जमहूरी अमल के तसलसल और पासदारी के लिए ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि ANP जमहूरियत की बालादस्ती पर यकीन रखती है। हुकूमत अवाम की फलाह के लिए मुख्तलिफ इक़दामात जारी रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान हालिया दिनों में 3 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर चुके हैं। पाकिस्तान में आज भी खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हैं। इस हवाले से देखते हैं PTV न्यूज की ये खुसूसी रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन आलमी मार्केट में कीमतों में उतार चढ़ाव को मद्देनजर रखकर किया जाता है। पाकिस्तान ऐसे ममालिक में शामिल है जिनका इन्हिसार दरामदी ऑयल पर है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का रुझान देखा गया, जिसकी वजह से ऑयल दरामद करने वाले मुल्कों में भी कीमतें बढ़ी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 दफा खित्ते के ममालिक के बरअक्स आलमी मंडी में होने वाले इजाफे का बोझ अवाम पर मुंतकिल न करने का फैसला किया और मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी। खित्ते की सूरत हाल पर नजर दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दूसरे मुल्कों से कम हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की इस वक्त कीमत $.70 है, जो 112 रुपए फी लीटर बनती है। श्रीलंका में फी लीटर पेट्रोल की कीमत $.83,
नेपाल में $0.95, बांग्लादेश में $1.05, भारत में $1.26, चीन में $1.03, बर्तानिया में $1.70 और जर्मनी में $1.64 फी लीटर है। भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर रोज रद्दोबदल किया जाता है। 167 ममालिक के जायजे के मुताबिक ऐसे ममालिक जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हैं, इनमें पाकिस्तान 18वें नंबर पर है, जबकि भारत 31, श्रीलंका 21, नेपाल 22, बांग्लादेश 27, चीन 26, बर्तानिया 36 और जर्मनी 33वें नंबर पर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2.5 साला दौरे हुकूमत और इससे पहली 2 हुकूमतों का तकाबली जायजा कुछ इस तरह है। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के दौरान 2009 में पेट्रोल की कम तरीन कीमत $50.50 फी लीटर थी, जबकि डॉलर $84 का था। 2012 में पेट्रोल की बुलंद तरीन कीमत $108.43 थी, जबकि डॉलर $95 का था। आज डॉलर की कीमत $158 है। इसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के दौर में पेट्रोल की कम तरीन कीमत $94.98, जबकि बुलंद तरीन $180.36 फी लीटर बनती है। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में पेट्रोल की कम तरीन कीमत 2016 में $62.77 और डॉलर $104 का था, जबकि 2013 में पेट्रोल की बुलंद तरीन कीमत $113.24 थी। उस वक्त डॉलर $105.60 का था। आज डॉलर की कीमत $158 है। इसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के दौर में पेट्रोल की कम तरीन कीमत $95.36 और बुलंद तरीन $169.43 फी लीटर बनती है। मौजूदा हुकूमत के दौर में जून 2020 में पेट्रोल की कम तरीन कीमत $74.52 फी लीटर रही। उस वक्त डॉलर $158.40 का था, जबकि बुलंद तरीन कीमत अगस्त 2019 में $117.83 थी। उस वक्त डॉलर $156 का था। इस तरह पीटीआई के दौरे हुकूमत में पेट्रोल की कम तरीन कीमत $74.52 और ज्यादा से ज्यादा कीमत $117.83 फी लीटर रही। अगर डॉलर $158 का हो तो पीपल्स पार्टी के दौर में पेट्रोल की कम तरीन कीमत $94.98, मुस्लिम लीग नून $95.36 और तहरीक इंसाफ के दौर में $74.52 फी लीटर बनती है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के दौर में बुलंद तरीन कीमत $180.36, मुस्लिम लीग नून $169.43 और तहरीक इंसाफ के दौर में $117.83 फी लीटर बनती है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। यौम पाकिस्तान के हवाले से ISPR ने नया प्रोमो जारी कर दिया है, जिसमें एक कौम एक मंजिल को उजागर किया गया है। प्रोमो में हुसूल पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों, कायद के पैगाम और कौम के अज़्म इस्तिक़लाल को बयान किया गया है। इस साल का मौजू है एक कौम एक मंजिल। नाज़रीन, आइए आपसे प्रोमो शेयर करते हैं। बहावलपुर कोर के ज़ेर एहतमाम मुसल्लह फौज की तरबियती मशकों के दौरान मकामी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के 500 से ज़्यादा तलबा, तालिबात और असातिज़ा ने एक दिन चोलिस्तान में बहावलपुर कोर के साथ गुजारा। इस एक रोज़ा प्रोग्राम का मकसद नौजवान नस्ल को मुसल्लह फौज की जिम्मेदारियों और पेशा वराना सलाहियत के बारे में आगाह करना था। प्रोग्राम के आगाज में तलबा को फौजी जवानों की पेशा वराना महारत से मुतालिक अमली मुजाहिरा दिखाया गया। तलबा ने टैंक और APC की सवारी की और फौज के ज़ेर इस्तेमाल असलहे और जंगी आलात का जायजा लिया। तलबा ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का फायर भी देखा। पाक फजाइया की जंगी तैयारों के हमले का मुजाहिरा देखते हुए तलबा का जोशो खरोश दीदनी था। तलबा ने कोर कमांडर बहावलपुर से भी मुलाकात की और पाक आर्मी की पेशा वराना काबिलियत की बेहद तारीफ की। आज बहावलपुर के अंदर हमारे डिफरेंट सोसाइटी के यूथ यहाँ पे मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। पाक आर्मी की मशक़ें देखने के लिए इस किस्म की एक्टिविटीज़, इंटरेक्शन होते रहना चाहिए। आज का दिन हमने पाकिस्तान आर्मी के साथ गुजारा। मेराज तैयारों की गनगरिश देखकर, आर्टिलरी के अपने टारगेट को अचीव करते हुए देखकर आज इसका मुझे पुख्ता यकीन हो गया कि हमारा दिफा नाकाबिले तस्लीर है। पाकिस्तानी फौज जो एक्टिविटीज कर रही है, जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है, वो आज हमने रियल में यहाँ पे देखने को मिली। थैंक यू सो मच पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। ये देख के एहसास हुआ है कि इट्स अ वेरी टफ लाइफस्टाइल और वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर आर्मी कि वो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सरहदों पे वो जागते हैं, इसीलिए हम आराम से सुकून से सोते हैं। तो सल्यूट टू पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे ज्यादा फायरिंग के वक्त बहुत मजा आया है। मेरी विश है कि इधर मैं फिर से आऊँ। पाक आर्मी जिंदाबाद। हमारी पाक आर्मी दिन रात मेहनत करती है, धूप अंधेरे में, छाँव में, सर्दी में,
ہر وقت یہاں پر محنت کرتے ہیں، ہمارے پاکستان پیارے وطن کے لیے ہمارے جان قربانی کرتے ہیں. ہم لوگ یہاں اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ آئے ہیں، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے ساتھ. پاک آرمی ہمارے لیے کیا کچھ کر رہی ہے، اتنی دھوپ میں رات میں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، جاگ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے کام کر رہی ہوتی ہے. پاک آرمی زندہ باد. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. حکومت پاکستان کی جانب سے گھر گھر احساس ڈیجیٹل سروے جاری ہے، جس کے نتیجے میں 70 لاکھ مستحق خاندانوں کو احساس کفالت پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے. سروے نمائندے کے ساتھ تعاون کریں اور انہیں اپنے قومی شناختی کارڈ سمیت اپنے گھرانے کی درست معلومات فراہم کریں. مستحق گھرانوں کے جن افراد کے شناختی کارڈ نہیں ہوں گے، انہیں 8171 سے شناختی کارڈ بنوانے کا پیغام آئے گا اور اہل افراد کو 12,000 کی پہلی قسط کی وصولی کا پیغام آئے گا. رقم حبیب بینک اور بینک الفلاح کے مقرر کردہ ادائیگی مراکز سے وصول کریں. احساس کے تمام پیغامات صرف 8171 سے ہی آتے ہیں. یاد رہے، احساس کے کسی بھی پروگرام میں شمولیت کی کوئی فیس نہیں. مزید معلومات کے لیے 0800 26477 پر رجوع کریں. ویلکم بیک. حکومت کی جانب سے تعمیراتی شعبے کو دی گئی مراعات میں 31 دسمبر تک توسیع سے ملک بھر میں تعمیراتی سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں راہیل انصار. تعمیراتی شعبے کو دی جانے والی براعت سے جہاں سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں روزگار کے مواقع بھی بڑے ہیں. سیمنٹ سیکٹر، اسٹیل سیکٹر، گراس، کیبل، ان سب چیزوں کے اندر ان کی گروتھ ہوئی ہے. اور اسٹاک ایکسچینج بھی مارچ کے مہینے میں باٹم ہٹ کی تھی، لیکن جو ہی کمپنیز نے پروفیٹیبلٹی کرنا شروع کی، ان کی گروتھ ہونا شروع ہوئی، ان کی پروڈکشن بہتر ہونا شروع ہوئی، تو وہ کمپنیز بھی اسٹاک مارکیٹ میں امپروو ہو گئی. سرمایہ کاروں سے ذرائع آمدن نہ پوچھے جانے کی چھوٹ سے تعمیراتی شعبے میں تیزی آ رہی ہے، جس کے باعث اس سے وابستہ دوسرے شعبوں کی کاروباری سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. نہ صرف ایک ڈیولپر بلڈر کو فائدہ ہونے جا رہا ہے، بلکہ ایک وہ مزدور جو اپنی روزی کے لیے، اپنے کام کے لیے سارا دن فٹ پاتھ پہ بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے، اس کو روزگار ملے گا. جب اتنی بڑی تعداد میں کام ہونے جا رہا ہے، کنسٹرکشن ہونے جا رہی ہے، تو اتنی ہی بڑی تعداد میں ہمیں مٹیریلز کی ریکوائرمنٹ ہے، ہمیں اسکل لیبر کی ریکوائرمنٹ ہے. تعمیراتی شعبے سے وابستہ تقریباً 40 قسم کی انڈسٹری متحرک ہوئی ہے اور عام آدمی کو روزگار تک رسائی آسان ہو رہی ہے. بے گھر افراد کو چھوٹے گھروں پر حکومت کی جانب سے سبسڈی دی جائے گی، جبکہ کم قیمت مکانات کی آسان اقساط پر فراہمی کے لیے بینکوں نے بھی 378 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کر رکھی ہے. صنعتی ترقی ملکی معیشت کی ترقی ہے، جو در حقیقت لوگوں کا معیار زندگی بہتر بناتی ہے. راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. کل جماعتی حریت کانفرنس کے ورکنگ وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ تنازع کشمیر کا فوری حل جنوبی ایشیا میں رہنے والوں بالخصوص بدترین بھارتی مظالم کا شکار کشمیری عوام کے وسیع تر مفاد میں انتہائی ضروری ہو چکا ہے. سری نگر سے ایک بیان میں غلام احمد گلزار نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ بھارت نے مقبوضہ علاقے میں ظلم و بربریت کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے. دریں اثنا قانونی ماہرین نے اپنے انٹرویوز میں نریندر مودی کی فاشسٹ حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں اختلاف رائے کو دبانے کے لیے بغاوت کے قانون کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے پر شدید تشویش ظاہر کی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سعید علی گیلانی، یاسین ملک، شبیر احمد شاہ، مسرت عالم بٹ اور آسیہ اندرابی سمیت حریت رہنماؤں کے خلاف بغاوت کے مقدمات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے.
पुलिस ने डिग्री कॉलेज उधमपुर के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बारी को गैर कानूनी सरगर्मियों के इंसदाद से मुताल्लिक काले कानून UAPA के तहत गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा इलाके की हाई कोर्ट ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुश्ताक अहमद वानी, एजाज अहमद और शौकत अहमद भट्ट की नजरबंदी कलअदम करार दे दी। ताहम अदालती हुक्म के बावजूद किसी भी नौजवान को रिहा नहीं किया गया। वाशिंगटन में एक इजलास के मुकर्रीन ने मुसरत आलम भट्ट और दूसरे सियासी नजरबंदों की भारतीय जेलों से फौरी रिहाई का मुतालबा किया। गुलाम नबी फाई ने इस मौके पर कहा कि भारत ने मकबूजा वादी में जबरो इस्तबदाद का मुनज़्ज़म जाल फैला रखा है। साबिक ऑस्ट्रेलवी सेनेटर ली रियानन ने कहा है कि इस साल आलमी यौम ख़वातीन का मरकजी ख्याल कश्मीरी ख़वातीन के हक़ खुदरादियत के मुतालबे पर मबनी होना चाहिए। भारत में ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज 100 दिनों से ज़ायद अरसे से जारी है और अब मुजाहिरीन ने दूसरे बजट सेशन के दौरान भारतीय पार्लियामेंट के घेराव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसान रहनुमाओं ने ऐलान किया है कि ये घेराव अब ज़राई क़वानीन वापस न लिए जाने तक जारी रहेगा। दरअसल दिल्ली बॉर्डर पर एहतजाज में शामिल एक और किसान ने खुदकुशी कर ली। हरियाणा के 55 साला किसान ने टेकरी बहादुरगढ़ बॉर्डर पर दरख्त से झूलकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। मगरबी उत्तर प्रदेश के शहर मीरठ में एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा कि किसान 100 दिन एहतजाज करें या 100 महीने, मोदी के मजालिम के खिलाफ तमाम सियासी कुव्वतें किसानों के साथ हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 1780 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 39 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना से जान बहक होने वालों की तादाद बढ़कर 13,205 हो गई है। मुतासर अफराद में से 5,59,000 से ज्यादा सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,595 अफराद की हालत तशवीशनाक है। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 11 करोड़ 72 लाख से तजावुज कर गई, जबकि 26 लाख से ज्यादा हलाक हो चुके हैं। इस वक्त 9 करोड़ 27 लाख से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो गए हैं। अमेरिका में 5,37,000 अफराद हलाक, जबकि 2 करोड़ 96 लाख से ज्यादा मुतासर हुए हैं। भारत में 1,57,000, ब्राजील में 2,64,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अमरीकी सेनेट ने सदर जो बाइडन के $1,90 अरब के कोरोना इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी है। बिल के हक में 50 जबकि मुखालफत में 49 वोट डाले गए। कोरोना इमदादी बिल को जो बाइडन हुकूमत की पहली बड़ी कानूनसाजी करार दिया जा रहा है। पैकेज का मकसद अमरीकी अवाम, छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों और कारोबारी अफराद को रिलीफ फराहम करना है। और नाज़रीन, कोरोना वायरस से बचाव के इक़दामात में मास्क का इस्तेमाल पहली हिफाजती तदबीर है, जबकि पैरामेडिकल स्टाफ के लिए किट्स का पहनना भी जरूरी है। कराची में कोरोना मास्क और किट्स की तैयारी पर देखते हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन की ये रिपोर्ट। कराची के इलाके लांडी में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कायम मास्क फैक्ट्री न सिर्फ मुल्क की मकामी मांग को पूरा कर रही है, वहीं ये अम्र भी काबिल इत्मीनान है कि तैयार करदा ये मास्क दुनिया भर बिलखुसूस यूरोप और अमेरिका में भी बरामद किए जा रहे हैं। ये अमेरिकन लैब नेल्सन से सर्टिफाइड है। हमने इसकी यूरोप से भी सर्टिफिकेशन कराई हुई है और हमने इसकी अमेरिका से भी सर्टिफिकेशन करवाई है, क्योंकि ये मेडिकल के लिए और नॉन मेडिकल दोनों जगह पर इस्तेमाल होता है। सादा मास्क के साथ साथ N95 मास्क, जिसकी तैयारी मुनफरिद होने के साथ साथ मुख्तलिफ नौ खुसूसियात की भी हामिल है, वो भी मकामी सतह पर तैयार किए जा रहे हैं। अब बहुत सारे प्लांट यहाँ पे नॉन वुमेन फैब्रिक के लग गए, जिसकी वजह से वैल्यू एडेड आइटम बन रहे हैं यहाँ पे, जिसकी और रोजगार भी मिल रहा है। कोरोना वायरस में मास्क के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट रनर और मुख्तलिफ शोबों में काम करने वालों के लिए किट्स भी इस फैक्ट्री में तैयार की जा रही हैं, जबकि इसे भी दुनिया भर में बरामद करने का सिलसिला जारी है। मुल्क में कायम सेफ्टी कमीशन के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए जाने वाले ये मास्क और किट्स बैनुल अक़वामी सतह पर भी बरामदात के लिए जरूरी सर्टिफिकेशन और गाइडलाइंस पर अमल हमारे हुनरमंदों की सलाहियत और हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों के तसलसल का इजहार है, जिससे सनतों के फरोग और ज़र मुबादला में इजाफे का अमल भी जारी है। ये अमर खुश आइंद है कि मकामी सतह पर तैयार होने वाले मास्क पूरी दुनिया में भी बरामद किए जा रहे हैं। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब 4 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाइयां शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखैल जबकि जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके जोइदा में की। मारे जाने वाले दहशतगर्द अब्दुल आदम ज़ेब उर्फ डंग का ताल्लुक कलअदम TTP के बिस्मिल्लाह ग्रुप से था। हलाक दहशतगर्द कमांडर मौलवी महबूब उर्फ मौलवी और दहशतगर्द कमांडर मीर सलाम उर्फ अंस का ताल्लुक कलअदम TTP के सजना ग्रुप से था। दहशतगर्द कमांडर अब्दुल आदम ज़ेब 20 से ज्यादा दहशतगर्द कार्रवाइयों में मतलूब था। दहशतगर्द कमांडर मौलवी महबूब और मीर सलाम बैतुल्ला महसूद के करीबी साथियों में से थे। दहशतगर्द लधा कला फोर्सेस पर हमलों और बम धमाकों में मुलव्वस थे।
स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट के सामने नाखुशगवार वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात अफसोसनाक और काबिल मसम्मत हैं। सियासत में शाइस्तगी, तहम्मुल, बर्दाश्त और रवादारी का कल्चर अपनाना होगा। स्पीकर ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं, उनकी इज्जत सब पर लाजिम है। हमें सियासत में बर्दाश्त, तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाएगी और इस तरह के वाक़यात के तदारुक के लिए सियासी क़यादत को अपना किरदार अदा करना होगा। इंसदाद मुनशियात के वजीर एजाज अहमद शाह ने कहा है कि पाकिस्तानी तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आज़म ने खुद असम्बली से एतमाद का वोट लिया है। ननकाना साहिब के इलाके लाडोआना में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम और मीडिया मुल्की सियासत में करप्शन करने वालों को बेनकाब करने में हुकूमत का साथ दे। उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन के बाद कौम ने एक मरतबा फिर अपोजिशन का असल चेहरा देख लिया है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक है, जिसकी तहकीकात के लिए कमेटी बनाई जाएगी और जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, सेनेट में भी उनके साथ खड़े हैं। मुलाकात में वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा, अरकान कौमी असम्बली मुनस इलाही, सालिक हुसैन, हुसैन इलाही और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा, सैयद हसन मुर्तजा और जमील सोमरो भी शरीक थे। नाज़रीन, पाकिस्तान में सयाहत के फरोग के लिए इस्लामाबाद में फोरम का एहतमाम किया गया। इसका मकसद देखने वालों पर सहर तारी कर देने वाले दिलकश कुदरती मनाजिर को आलमी सतह पर मुतारिफ कराना था। तफसील बता रहे हैं चौधरी मजहर। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सियाहती फोरम से खिताब करते हुए वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब ने कहा कि पाकिस्तान दिलकश और मतनव्वु सियासत के लिहाज से अक़वाम आलम में मुनफरद मुकाम रखता है और इस जैसे कुदरत के हसीन शाहकार नज़ारे दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। गिलगित से आप नीचे की तरफ आते हैं, वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे तीनों पहाड़ रेंजेस हिंदी कुश, कराकोरम और आपका हिमालयस वहाँ पे मिलते हैं। खपलू चले जाएं, आप मिनीमर्ग चले जाएं, देवसाई चले जाएं, आप ऊपर की तरफ आप बूनी चले जाएं, मस्तूज, अपर चित्राल, बरोगल चले जाएं, आप गबादर चले जाएं, आप बलोचिस्तान के अंदर चले जाएं, कोलू चले जाएं। कैसी वो जगह हैं जहां पे आपको खूबसूरती नजर नहीं आएगी। दुनिया में मुझे एक जगह बता दें कि जहां पे ऐसी चीज आपको नजर आ रही हो। वजीर आजम के मुआवने खसूसी सैयद जुल्फकार अब्बास बुखारी ने कहा कि सियाहत समाजी, सकाफती और इक्तसादी अमूर पर बराह रास्त असरअंदाज होती है और हुकूमत इसके फरोग के लिए अमली इक़दामात कर रही है, जिसके मस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। एक वेबसाइट ब्रांड पाकिस्तान की बना दी है, जिसके अंदर आपकी सारी होटल बुकिंग, फ्लाइट, वीजा, ट्रैफिक कंट्रोल, एयर कंट्रोल, वेदर कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन, उसका स्टैंप लगेगा ब्रांड पाकिस्तान के ऊपर। ये सारी चीजें तैयार हैं। अगले 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर आपके पास 25 से 32 गेस्ट हाउसेज और होटल्स 3 to 5 स्टार स्टैंडर्ड्स के आपको यहाँ पाकिस्तान में के अंदर हैं। सेमिनार से सियाहत के शोबे से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात और गैर मुल्की व्लॉगर्स ने भी खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान सियाहत और कुदरती खूबसूरती के लिहाज से दुनिया में अपना सानी नहीं रखता। मुकर्रिरीन ने कहा कि सियाहत के फरोग से अक़वाम आलम में पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने में मदद मिलेगी। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं कि सूबे में सयाहत के फरोग के लिए जामे हिकमत अमली के तहत इक़दाम किए जा रहे हैं। पेशावर में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि सयाहत के फरोग से न सिर्फ मकामी लोगों को रोजगार के मौके मैसर आएंगे, बल्कि सूबे की मईशत भी मजबूत बुनियादों पर उस्तवार होगी। उन्होंने कहा कि निजी शोबे को सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद बेहतरीन ममालिक में होता है जहाँ सयाहत के बेपनाह मौके मौजूद हैं। मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा भी पाकिस्तान की खूबसूरती और सकाफत के मोतरफ हैं। इस्लामाबाद में तैनात उज़्बेकिस्तान के सफीर ऐबक उस्मानोव ने इस हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपसे वो दिखाते हैं। You have so much tourism potential in your country, and Pakistan also has that. So how can you collaborate in the field of tourism?
religious tourism, ecotourism, and historical tourism, which you mentioned, they are very important, and the medical tourism are very important dimensions of our regional connectivity. Tourism may flourish in both of our countries. In Samarkand and Bukhara and Khiva and Tashkent are very dear cities and very known cities for every Pakistanis. Every Uzbekistanis will be happy to visit Lahore, Peshawar, Lahore, Multan, Bahawalpur. These cities, they've been blessed by the Amir Taimur Khan, and then with the Baburid descents, starting from Mirza Zaharuddin Babar and Jahangir and Shah Jahan. And Lahore, first of all, is the very dear city for all Uzbekistanis. Tell us about the modern development of Uzbekistan. We are on the very brotherly and culturally, spiritually close nations under the leadership of my President Shavkat Mirziyoyev. The Uzbekistan has opened a new era in his history. So the poverty alleviation means that it can be done, as rightly was said by my President and Honorable Prime Minister Imran Khan Sahab. The problem of the poverty alleviation, that can be done via expanding the trade. Muhammad Allama Iqbal has said about the importance of Afghanistan for all Central Asia and South Asia. Uzbekistan is already a biggest partner of the Islamic Republic of Pakistan in Central Asia. We have the biggest volume of the trade and investment. Pakistan is the genuine and the natural genuine hub, regional hub for the Central Asia to go to the South Asia. पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की कारकर्दगी पर शदीद बरहम हुए। वज़ीर आला पंजाब ने अवामी मसाइल हल न करने और फलाह आमा के मंसूबों में ताख़ीर पर मुतल्लिका हुकाम की सख्त सरजनिश करते हुए मुतल्लिका सेक्रेटरीज को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की। लाहौर में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से इजलास में उन्होंने कारकर्दगी बेहतर करने और अवामी मसाइल हल करने के लिए मौसर इक़दाम करने की हिदायत की। वज़ीर आला सरदार उस्मान खान बुज़दार ने कहा कि अवाम की तवक्कुआत पर पूरा न उतरने वाले अफसरान को ओहदों पर रहने का कोई हक नहीं। फलाह आमा के मंसूबों में मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हर स्कीम की थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग कराई जाएगी। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए कोशां हैं। इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शफाफियत को फरोग मिलेगा। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पढ़ी लिखी और हुनरमंद ख्वातीन मुल्क की तरक्की की हकीकी ज़ामिन हैं। ख्वातीन की मुआशी और समाजी तरक्की के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि साजिशी टोले को हुकूमत की कामयाबी एक आंख नहीं भा रही, ताहम तमाम तर साजिशों के बावजूद मुल्क की तरक्की का सफर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि नून लीग दो धड़ों में तकसीम होती हुई नजर आ रही है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अलामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि आइंदा तालीमी साल से कबल मदारिस की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर दिया जाएगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा दौरे हुकूमत में मदारिस के असातिज़ा और तलबा को हिरासा करने का सिलसिला बंद हुआ है। अब ये उलमाए कराम की जिम्मेदारी है कि फितनों के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। नए तालीमी साल से पहले तमाम मदारिस को इंशाअल्लाह रजिस्टर किया जाएगा, मसाजिद को रजिस्टर किया जाएगा, जो मुश्किलात हैं उनको हल किया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब के हुक्म पर मैं पूरे मुल्क के अंदर जो है उलमा, मशाइख, आइम्मा, खुतबा, दीगर मज़ाहिब के जो मजहबी कायदीन हैं, जो उनके मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उनके हल के लिए इंशाअल्लाह हम जा रहे हैं। कौमी इंतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि मौसर हिकमत अमली के जरिए बदउनवानी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मेगा करप्शन मुकदमात को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने हिदायत की कि तमाम तहकीकात को मेरिट, शफाफियत, ठोस शवाहिद और दस्तावेजी सबूतों की बुनियाद पर मुकम्मल किया जाए। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने मुतालिका डीजीज को गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की। उन्होंने कहा कि नैब रावलपिंडी ब्यूरो में जदीद फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री के क़याम से इंक्वायरीज और तफ्तीश के मयार में मज़ीद बेहतरी लाने में मदद मिली है। इस्लामाबाद में ख्वातीन के निजी कॉलेज में इमदादी आलात के जरिए तालीम तक रसाई के मौजू पर सेमिनार हुआ, जिसमें तलबा, असातिज़ा और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
मुकर्रिरीन ने कहा कि तालीमी इदारों को तलबा की दुनियावी तरबियत के साथ साथ दीनी तरबियत का भी एहतमाम करने की ज़रूरत है। उस्ताद को तलबा की जहनी उलझनों को अपनी कायदाना सलाहियत और आला अखलाक से सुलझाने का मुतहम्मिल होना चाहिए। सक्खर, रोहड़ी और पन्नू आकिल के दरमियान कराची एक्सप्रेस के हादसे के बाद हलाक होने वाला ट्रैक बहाल कर दिया गया है। रेलवे के आला अफसरान और टेक्निकल टीम ने जाए हादसा का मुआयना करके शवाहिद इकट्ठे किए। गुज़श्ता रात कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस रोहड़ी पन्नू आकिल के दरमियान हादसे का शिकार हो गई थी, जिसके नतीजे में एक खातून जाँ बहक और 20 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी हो गए थे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नायाब और कीमती पत्थरों से मालामाल किया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से निकाले जाने वाले कीमती पत्थरों को दुनिया भर में बेहद पसंद किया जाता है। तफसील बता रहे हैं रिजवान आरिफ। पाकिस्तान में कीमती पत्थरों के वसी ज़खायर मौजूद हैं, जिनमें ज़मुर्द, रूबी और दीगर कीमती पत्थर शामिल हैं। ताहम गुज़श्ता हुकूमतों की जानिब से अदम तवज्जो के सबब ये ज़खायर पहाड़ की शक्ल में खड़े मुल्क और कौम की हालत पर अफसोस कर रहे हैं। सवात का एमरल्ड जहाँ पड़ा हुआ है, कश्मीर का रूबी पड़ा हुआ है, पिंक टोपाज पड़ा हुआ है और टर्मोलिन पड़ी हुई है, और ये $बिलियन का आपको जो पीछे चीजें नजर आ रही हैं, ये इंशाल्लाह ताला इस मुल्क की एक्सपोर्ट बनाने के लिए जो आज का जेम एंड मिनरल शो है, ये बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी के शोबे से वाबस्ता सरमायाकारों के लिए ई कॉमर्स और कारोबार में इजाफे के लिए दोस्ताना पॉलिसियों, सरमायाकारी और एक्सपोर्ट के लिए आसान SOPs के क्याम के लिए वजीर आजम टास्क फोर्स अमली इकदाम कर रहा है। ये वो फोरम है जहाँ से मैं ना ये कि इन कीमती चीजों की एक्सपोर्ट को हम बूस्ट कर सकते हैं, बल्कि हम अपने बलूचिस्तान के लिए भी एक स्मॉल इंडस्ट्रीज पे जा सकते हैं। जितनी मादनियात के पत्थर है, प्रेशस है या सी प्रेश, वो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। स्कर्दू साइड पे, KPK में, सुवात में, इन इलाकों में काफी माल है, मार्जिन बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में सैकड़ों इकसाम के नायाब और कीमती पत्थर मौजूद हैं, जिनके बारे में तहकीक, समझ और महारत की जरूरत है, ताकि दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान भी इस कारोबार से मुल्की मुईशत को मुस्तहकम कर सके। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। सिंध के पसमानदा तरीन जिला थरपारकर में ज़राअत की तरक्की और गरीब हारियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समाजी शोबा भी मुतहर्रिक है। थर में ज़ेरे ज़मीन खारे पानी को इस्तेमाल करके सहरा को गुलजार बनाया जा रहा है। सोहेल जमाली की रिपोर्ट बनाई। गुर्बत, भूख, सहूलतों की अदम दस्तयाबी और ग़िज़ाई किल्लत सहरा थर की पहचान बन गए हैं। हजारों मुरब्बा किलोमीटर पर फैले थर में रिवायती फसलें सिर्फ बाराने रहमत की मरहून मिन्नत हैं। अगर बारिशें ना हो तो थर को हर चंद बरस बाद कहत का सामना करना पड़ता है। इस सूरत हाल में कराची के समाजी कारकुनों ने थर की मुताबिद तहसीलों में एक इनकलाबी मंसूबा मुतारिफ कराया है, जिसके तहत बंजर जमीनों पर ट्यूबवेल, कुओं और बोरिंग के जदीद तरीके इस्तेमाल करके खारे पानी से इन जमीनों को काबिल काश्त बनाया जा रहा है। 500 बेर के दरख्त, और इस तरह आप देख रहे हैं कि बिल्कुल फलों से लदे हुए दरख्त हैं, और उसके साथ हमने जीरा लगाया है, सरसों लगाई है, इसबगोल लगाई है। उसमें भी उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह हमें लाखों में जो है वो उसकी आमदनी होगी। एग्रो फार्मिंग के इस मंसूबे के तहत थर की तमाम तहसीलों में 44 मकामात पर जमीनों को सरसब्ज़ो शादाब बनाया गया है। ये जो छोटे छोटे एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी वजह से क्योंकि इन खानदानों की माशी हालात बेहतर हो रही है, तो उनके बच्चों को, उनकी खवातीन को अच्छी ग़िज़ाई सहूलियात मिल रही हैं, जिसकी वजह से जाहिर है जब वो खुद सेहतमंद होंगी, जो उनके बच्चे होंगे वो भी सेहतमंद होंगे। हमने जो 2.5 साल पहले इक़दाम शुरू किए थे, आज उसके नताइज सामने आए हैं। जिन इलाकों में बिजली मौजूद नहीं, वहाँ सोलर सिस्टम के जरिए कुओं से पानी निकाल के बेआबो गया जमीन को गुलजार किया जा रहा है। अब तक थरपारकर में इस तरीक़े काश्त से कपास, सरसों, गंदुम, बाजरा, जंतर, इसबगोल, मुख्तलिफ सब्जियां और खजूर समेत बेर, अनार और दूसरे फल और अजनास काश्त किए जा चुके हैं। सिंध की सूबाई हुकूमत अगर ऐसे मंसूबों की सरपरस्ती करे तो थरपारकर में कहत, ग़िज़ाई किल्लत और बेरोजगारी का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो सकता है। सोहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, दहली, जिला थरपारकर। मशरूम के बारे में आम तासुर खुदरो पौधे का है। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रोटीन से भरपूर मशरूम घर पर भी लगाई जा सकती है और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के खानों में भी इस्तेमाल की जाती है। मशरूम उगाने के लिए ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में मुफ्त तरबियत की तफसील बता रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद कलीम अपनी इस रिपोर्ट में। ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर जादुई असरात की हामिल मशरूम उगाना बहुत आसान है। प्लास्टिक के एक बैग में गंदम या चावल का नमी वाला भूसा रखें
और इसमें मशरूम के बीज डालकर तेज रोशनी से महफूज किसी जगह रख दें। 7 से 8 हफ्तों में चंद ग्राम बीज आपको तकरीबन 1 किलो सेहतमंद मशरूम फराहम करेगा। प्रोटीन बेस और प्लांट बेस ये फूड है जिसका ये बेनिफिट है कि मीट और दूसरी फिश से भी ये बेहतर फॉर्म में मिलती है। पाकिस्तान में भी दुनिया की तरह लार्ज स्केल पे खाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना ये लार्ज स्केल पे काश्त नहीं होती और मोस्टली ये इंपोर्ट करता है पाकिस्तान। मशरूम उगाने वाले अफराद का कहना है कि ये कारोबार निस्बतन महफूज, ज्यादा मुनाफा बख्श और बड़े पैमाने पर बढ़ाने के इम्कानात से भरपूर है। यूनिवर्सिटी में 1 साल का प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने यानी कि ट्रेनिंग भी ली और उस पर काम किया, और उसके बाद फिर मैंने घर में जो है ना अपना एक रूम बनाया कच्चा सा, उसमें शुरू किया, उसके साथ साथ अब कमर्शियली किया हुआ है। मार्केट में मुख्तलिफ अकसाम की मशरूम की कीमत 500 रुपए से 1500 रुपए फी किलोग्राम है। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के माहिरीन मशरूम उगाने के ख्वाहिशमंदों को मुफ्त तरबियत फराहम करते हैं और किसी मुश्किल की सूरत में रहनुमाई भी करते हैं। मशरूम की पैदावार एक इंतहाई सस्ता और आसान अमल है, लेकिन इससे होने वाला मुनाफा आम फसलों से कहीं ज्यादा है। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। ठट्ठा शहर में मुगल बादशाह शाहजहां की जानिब से तामीर कराई गई शाहजहां मस्जिद अपने मुनफरिद आर्किटेक्चर और तर्ज तामीर के बायस आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज है। इस तारीखी मस्जिद की अहमियत और खूबसूरती के बारे में देखते हैं ठट्ठा से हमारे नुमाइंदे अली असगर अरबाब की रिपोर्ट। ठट्ठा शहर के मरकज में मौजूद शाहजहां मस्जिद को जामा मस्जिद भी कहा जाता है, जो मुगल शहंशाह शाहजहां ने सन 1644 में तामीर कराई थी। मस्जिद लाल ईंटों और पत्थर से तामीर की गई है, जिसकी बुनियाद 15 फीट गहरी है। मस्जिद में 100 गुंबद हैं, जिनमें 6 बड़े जबकि 94 छोटे हैं। यूं नमाज के दौरान इमाम की किरात और खुतबे की आवाज मस्जिद के आखिरी कोने में मौजूद लोग बगैर किसी बरकी आले के आसानी से सुन पाते हैं। इस मस्जिद की जो हवा और रोशनी किसी भी हिसाब से इसमें वो नहीं है कि भाई हवा की कमी हो या रोशनी की किसी कोने में भी कमी नहीं होती है, और इस मस्जिद में 20,000 लोग एक टाइम पे नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद में काशी का खूबसूरत काम किया गया है और इंतहाई खूबसूरत अंदाज से कुरान पाक की आयात की खताती की गई है, जिसने मस्जिद की सजावट में इजाफा कर दिया है। यूं ये मस्जिद अपनी खूबसूरती के बायस आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज है। ये हमारे मुल्क का सरमाया है, इसमें आए, इसको विजिट करें, ये सारी चीजें वो हैं जो कि हम काफी प्रमोट कर सकते हैं और दुनिया में इससे हम अपने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा बड़ा रेवेन्यू जो है ना जनरेट कर सकते हैं। हमारा एक तारीखी विरसा है, अगर इन चीज़ों को मौजूदा शक्ल में बहाल रखा जाए तो हमारे सिंध में चंद ही चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बहाल रख के अपने शनाख्त में रख सकते हैं। 3 साल के अरसे में मुकम्मल होने वाली इस मस्जिद का पूरा ढांचा 94 खंभों पर खड़ा है। शाहजहां मस्जिद एक तारीखी शाहकार है जिसे देखकर उस वक्त के कारीगरों की महारत का अंदाजा होता है। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, ठट्टा। नाज़रीन, तारीख पर नजर डालते हुए आपको बताते हैं कि तालपुर हुक्मरानों के दौर में फन तामीर का एक बेमिसाल नमूना खैरपुर के करीब कोट डेजी कला मौजूद है। ये तारीखी कला शाही महल, जेल खाना, फौजी जंगी साजो सामान और दिफाई हिकमत अमली के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। 235 साल पुराने इस तारीखी किले के हवाले से देखते हैं शिराज अली डाहरी की खुसूसी रिपोर्ट। खैरपुर शहर से 24 किलोमीटर फासले पर दरिया सिंध के किनारे पहाड़ी पर कोट डीजी किला आज भी मौजूद है। तालपुर हुक्मरानों के दौर में यूं तो कई किले तामीर हुए, लेकिन कोट डीजी किला, जिसका पुराना नाम अहमदाबाद किला था, बड़ी महारत से बनाया गया। किले की तामीर मीर सोहराब तालपुर ने 1785 में शुरू की, जो कि 10 साल तक जारी रही। 110 फीट ऊंची पहाड़ी पर 30 फीट चौड़ी दीवारें 2.25 किलोमीटर रकबे पर फैली हुई हैं। किला 6 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें 3 दिफाई दरवाजे, सोल्जर बैरेक्स, मीरानी हरम और सलामी के चबूतरे बनाए गए। ये मीर सोहराब खान तालपुर, फाउंडर ऑफ किंगडम, ने ये दिफा के लिए किला अहमदाबाद के नाम से बनाया था।
कोटजी किले की तामीर के लिए राजस्थान, थर और सांगड़ के सहराई इलाकों से मजदूरों और माहिर कारीगरों को बुलाया गया। एक तरफ दरियाए सिंध तो दूसरी तरफ पहाड़ी की ऊंचाई की वजह से इस किले पर दुश्मन का हमला करना आसान नहीं था और इसी वजह से इस किले पर कभी हमला नहीं हुआ और न ही इसे फतह करने की कोशिश की गई। किले के दरमियान में मीरानी हरम बनाया गया था जिसमें उस दौर के हुक्मरानों के मेहमान कयाम किया करते थे। किले में 50 बुर्ज, कैदियों के लिए बैरक्स और प्यादल फौज की रहाइश के लिए कमरे बनाए गए थे। कोटजी किले की तामीर में इस्तेमाल होने वाली ईंटें मकामी तौर पर इसी मकाम पर बनाई गई। वसी रकबे पर बने इस किले को तालपुर हुक्मरानों के दौर में सबसे महफूज किले का दर्जा हासिल था और दुनिया के मुख्तलिफ रियासतों के शाही खानदानों को इस किले में ठहराया जाता था। मुझे अच्छी बात ये लगी इसकी तर्ज तामीर बहैसियत एक इंजीनियर के, इतने महदूद वसाइल के बाद इतनी हैवी स्ट्रक्चर को खड़ा करना, मैं तो खुद उस टाइम के इंजीनियर्स को सलाम पेश करता हूँ। मैं कोयटा से आई हूँ, मुझे हिस्टोरी चीजें बहुत पसंद है और मुझे ये किला बहुत पसंद आया है। कोटजी किले में मीर सोहराब तालपुर, मीर रुस्तम खान और अली मुराद तालपुर ने वक्तन बवक्तन कयाम किया। कोटजी किले को अहमदाबाद किले से भी पहचाना जाता था, जहाँ तालपुर हुक्मरानों की शान व शौकत और शाही महल समेत जेल खाने, बुर्ज और दरबार आज भी मौजूद हैं। शिराज अली ताहिरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कोटजी, खैरपुर। दूध की ज्यादा पैदावार के लिए मशहूर और दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान साहिवाल गाय के हवाले से खानेवाल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन ने कहा कि साहिवाल गाय की नस्ल बढ़ाने के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग होना जरूरी है। उन्होंने दूध की पैदावार और लाइव स्टॉक के शोबे में खुद इन्हिसारी के हुसूल के लिए डिजिटाइजेशन और जीनियाती तहकीक पर तवज्जो मरकूज करने की अहमियत को भी उजागर किया। मुकर्रीन ने फार्म्स बनाने के लिए तरबियत और सेहतमंद मुकाबले की फजा को फरोग देने के हवाले से मुराद को पुरकशिश बनाने पर जोर दिया। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका में शील्ड्स तकसीम की गई। नाज़रीन, मुल्क भर में स्मगलिंग की लानत के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम जारी है। गैर कानूनी अशिया की नकल व हमल के खिलाफ मुल्क भर में इंसदाद स्मगलिंग मुहिम में कस्टम्स, ANF और सिक्योरिटी इदारे मुतहर्रिक हैं। चमन में भारी मिकदार में मुनशियात, भारी अद्वियात, सिपारी और गुटखे को सरेआम नस्र आतिश किया गया। नस्र आतिश की जाने वाली गैर कानूनी अशिया की मालियत 1 अरब रुपए से ज़ायद थी। मुहिम से इंसदाद स्मगलिंग मुहिम से मुल्क की मईशत को पहुंचने वाले शदीद नुकसान की रोकथाम मुमकिन होगी। नाज़रीन, खेल में आपको बताते चलें कि पहला जना गोल्ड कप पोलो टूर्नामेंट डायमंड पेंट्स की टीम ने जीत लिया है। जना गोल्ड कप का फाइनल मैच जना पोलो एंड कंट्री क्लब लाहौर में हुआ, जिसमें सद डॉक्टर आरिफ अलवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। फाइनल मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद डायमंड पेंट्स ने टीम DS पोलो ASC को 7 के मुकाबले में 8 गोल से हरा दिया। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि खेल, सयाहत, अमन और खुशहाली मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट और हॉकी की तरह पोलो के फरोग के लिए भी इक़दामात करना होंगे। आखिर में सदर ममलुकत ने टूर्नामेंट में पोजीशन हासिल करने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। खिलाड़ियों और ऑफिसर्स में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस पाकिस्तान सुपर लीग के मुलतवी होने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैक्ट फाइंडिंग पैनल का ऐलान कर दिया है। वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर सैयद फैसल महमूद और डॉक्टर सलमा मोहम्मद अब्बास पर मुश्तमिल 2 रुकनी पैनल PSL 6 के लिए मुकर्ररा बायोसिक्योर प्रोटोकॉल्स और इससे जुड़े ज़िमनी कावानीन का असर-ए-नौ जायजा लेगा। पैनल 31 मार्च तक अपनी सिफारिशात और तजावीज़ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी को पेश करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी का कहना था कि आज़ाद पैनल इवेंट और होटल के अमले, मेडिकल एंड कंप्लाइंस अफसरान, टीमों के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट समेत तमाम मुताल्लिका स्टेक होल्डर से राबता कायम करेगा ताकि हमें बेहतर अंदाजा हो सके कि ये केसेस कैसे सामने आए। आगे बढ़ते हैं। मालम जब्बास की रिजॉर्ट ने सवात मैराथन का इनेकाद किया। रेस में नौजवान, बच्चों और खवातीन समेत 127 रेसर्स ने शिरकत की। इवेंट में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन और मैराथन के मुकाबले हुए। इस्तार खटक 42 किलोमीटर मैराथन के फाते रहे। हाफ मैराथन में शेर खान, 10 किलोमीटर में सुहेल आमिर और 5 किलोमीटर रेस में फैजान अली कामयाब रहे। इवेंट के आगाज में शुरका ने मोहम्मद अली सतपारा को खिराज अकीदत पेश किया। कौमी हीरो मोहम्मद अली सतपारा की याद में उनके आबाई गांव सतपारा में शमें रोशन की गईं। मोहम्मद अली सतपारा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यंग ट्रैकर्स बल्तिस्तान ने हसन सतपारा चौक से सतपारा गांव तक वॉक एहतमाम किया।
मरहूम कोहपैमा के फर्जंद साजिद सतपारा, मुजाहिर हुसैन और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि मोहम्मद अली सतपारा लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। दूसरी जानिब F9 पार्क इस्लामाबाद में 3 रोजा सियाहती और फैमिली मेले के दौरान भी लेजेंडरी कोहपैमा, मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथियों आइसलैंड के जॉन स्नोरी और चिली से ताल्लुक रखने वाले जॉन पब्लो मोहर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शमें रोशन की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। इस दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आखिर में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। समीना राना और रिजवान रौनक को न्यूज टीम के हमरा इजाजत दीजिए। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि जनूबी एशिया के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का कयाम मसले कश्मीर के मुनसिफाना और पायदार हल से मशरूत है। इस मसले की राह में भारतीय हठधर्मी और तोसी पसंदाना सोच वाहिद रुकावट है। भारतीय जिद, अना और रौनत के बायस 1947 से 6 लाख जबकि गुज़श्ता 3 दहाइयों में 1 लाख कश्मीरियों की कीमती जिंदगियों का इत्तलाफ हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 जंगें हो चुकी हैं। नरेंद्र मोदी की क़यादत में RSS हुकूमत के क़याम के बाद से न सिर्फ मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मजालिम में इजाफा हुआ है बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी भी होशरुबा हद तक बढ़ गई है। 27 फरवरी 2019 को जब ताकत के नशे में चूर हिंदुत्व के अलंबरदारों ने पाकिस्तान पर जारहियत की तो पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब ने भारतीय गुरूर को खाक में मिला दिया। इस इबरतनाक शिकस्त से भारतीय हुक्मरानों को भी ये एहसास हो गया कि पाकिस्तान को गीदड़ भभकियों से मरूब नहीं किया जा सकता। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालिया जंगबंदी मुआहिदा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अगरचे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा एक अहसन इकदाम है जिस पर कश्मीरी अवाम ने खुशी का इजहार किया है, ताहम लोगों का कहना है कि तनाज़ा कश्मीर तमाम फसाद की जड़ है और इस मसले को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किए बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं है। यहाँ का कश्मीरी हो चाहे उस पार का कश्मीरी हो, वो दोनों जो चाहते हैं एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए हमें, क्योंकि हम लोगों को जो है हम ही लोग पीछे जा रहे हैं। तो ये बड़ी बात नहीं है। ये फिर 6 महीने के बाद ये फिर सीज फायर खत्म हो जाएगा। इनका जंग बंग नहीं होगा, गोलियां नहीं बरसेंगी, गोले नहीं बरसेंगे। हम बड़े खुश हैं। यहाँ पर तमाम बलकोट गांव और जितने भी सरहदी कस्बा उड़ी के गांव हैं, इनमें एक ईद का समा था। जब हमने ये खबर सुनी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर माहिदे पे दस्तखत हुए, शहरों से बहुत बड़ा नुकसान होता है। यहाँ के लोगों को घर बार छोड़ना पड़ता है, कोई हालत नहीं रहती है, उसमें लाइफ जो है 100% रिस्क में चली जाती है, कोई यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं होती। इसलिए हम इसका खैर मकदम करते हैं ताकि लोगों की लाइफ सबसे कीमती है वो सेव हो सके। हम सियासत से उम्मीद करेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों से उम्मीद करेंगे। जो पहल की है इस पहल का हम खैर मकदम करते हैं, लोग इससे खुश हैं और उम्मीद करते हैं बाकी मामला जो है वो भी हल करेंगे। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हुर्रियत कायदीन का कहना है कि जब तक कश्मीरी अवाम को हक खुद इरादियत नहीं दिया जाता, जिसका वादा अक़वाम आलम ने कश्मीरियों के साथ कर रखा है, तब तक पायदार अमन एक ख्वाब ही रहेगा। जब तक मसले कश्मीर पर कोई पेशरफ न हो, उस वक्त तक हमें नहीं लगता कि ये सीज फायर लाइन
किसी बड़ी पेशरफ्त का पेशखीमा हो सकती। कश्मीर में एक बड़ी आबादी है जो इस एहसास का शिकार है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। जब तक उन एहसासात को एड्रेस करने की राह में कोई पेशरफ्त न करे, कोई हकीकी मानों में सीज फायर नहीं बन सकती और कुछ वक्त के बाद इसका खात्मा अक्सर होता रहा है और होता रहेगा। कश्मीरी अवाम का कहना है कि मसला कश्मीर के आबरूमंदाना हल के लिए सहफरीकी बातचीत जरूरी है और बातचीत का माहौल बनाने के लिए भारत को चाहिए कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अपने मजालिम बंद करे, सियासी कैदियों को रिहा करे और कश्मीरियों के हुकूक बहाल करे। जो हमारे मुसीबतें हमने देखी हैं, मौतें देखी हैं हमारे लोगों की, घर उड़ते देखे, बच्चे और औरतें और मर्द मरते देखे, वही हाल पार भी होगा। और फौजी जवान इधर भी मरे, वहाँ भी मरे। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि ये एक मामला तय हो रहा है, प्यार से हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देशों में अमन आए। मुझे ये याद है कि जब वाजपेयी जी आए थे कश्मीर और उन्होंने कहा था कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। पड़ोसी के साथ अगर हम दोस्ती में रहेंगे, वो हमारे साथ दोस्ती में रहेंगे, दोनों तरक्की करेंगे। और अगर दोस्ती में नहीं रहे तो दोनों की तरक्की सुस्त हो जाए। मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के हालात, जहाँ के लोगों के एहसास, चाहे वो हिंदुस्तान के वजीर आजम हो चाहे पाकिस्तान के वजीर आजम हो, इनके लिए जम्मू कश्मीर के मसले पे बातचीत करने के अलावा और कोई चारा नहीं। जिस तरह वाजपेयी जी ने एक बातचीत की शुरुआत की थी मुशर्रफ साहब के साथ, इस वक्त इमरान खान साहब से बात होनी चाहिए और एक अच्छा खुशगवार माहौल पैदा हो जाए ताकि जम्मू कश्मीर का जो जीना मतलब 70 साल से लग रहा है उसको हल किया जाए। पाकिस्तान हमेशा से ही तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल का ख़्वाह रहा है, लेकिन भारत मुख्तलिफ हीलों बहानों से फरार का रास्ता इख्तियार कर रहा है। ताहम अब वक्त आ गया है कि भारत इस बात का एहसास करे कि खित्ते में कशीदगी के खात्मे और अमन व इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। And they achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's Pakistan!